Now the next topic is electrostatic properties of a conductor. Suppose the first property is net electric field is zero inside a conductor. यानी किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. To explain this, we have considered a uniform electric field. These positive and negative plates are indicating that field is existing from the positive plate to the negative plate, and uniform electric field is present and is known as the external electric field. Now, while a conductor, this is a rectangular conductor, while the conductor is placed in this field, then electrons start moving in the opposite direction of electric field, in the opposite direction of external electric field. Due to this reason, negative charges appear at the left and positive charges appears at the right. Now the movement of the electron set up induce electric field inside the conductor, and the movement of the electron go on till this induced electric field is equal to the external electric field. Due to this reason, the net electric field E is the difference of induced electric field and external electric field, which are having equal value. That is why it will be equal to 0. यानी कि जब हम किसी भी कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं. एंड ऑब्वियसली इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन होल्स आर क्रिएटिंग एट द अदर साइड. तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर एक्युमुलेशन हो जाता है और होल्स अपोजिट साइड में. इनका मूवमेंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है इन द कंडक्टर, एंड द मूवमेंट गो ऑन टिल दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम 0. सेकेंड प्रॉपर्टी इज just outside the conductor electric field is perpendicular to the surface. Means if we are considering that this is the surface of a conductor, then electric field will exist normal to it. अगर हम ये मान लें कि electric field is not normal, then what will happen? Then component of electric field must be exist along the surface, and this electric field will move or oscillate the charges on the surface, and we know the flow of charges known as electric current. Means an electric current will also exist on the surface. But in static condition, static electricity, electric current cannot exist. It must be 0. Charges must be in the static condition. Hence, electric field must be normal to the surface. यानी मैं कहना चाहता हूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा, किसी और एंगल पर एग्जिस्ट कर जाएगा, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सरफेस के अलोंग हो जाएगा. और नॉर्मल कंपोनेंट सरफेस के अलोंग हो जाने से वो चार्जेस को क्या करा देगा? मूव. और फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्जेस का फ्लो होने लगेगा तो करंट जनरेट होगा. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट. हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी द परपेंडिकुलर वन ओनली ऑन द सरफेस. Now the next point is inside a conductor charge is 0. हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूव किया कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो कंसीडर अ कंडक्टर
and Q be the excess charge existing on the surface, E be the direction of the electric field which is normal on the surface. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ये डोटेड लाइन का मतलब है कि वी हैव कंसिडर्ड और एज्यूम अ गॉसियन सरफेस, हमने एक गॉसियन सरफेस मान ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस is equal to q upon epsilon naught. As electric field is zero, then phi e must be zero. अगर phi e zero होगा तो q upon epsilon naught is zero. What it means? It means q is equal to zero, means no charge is existing in the interior of a conductor. Now the next point is सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी सरफेस होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम। इसको शो करने के लिए एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, और एज वी हैव प्रूव that electric field inside the conductor is zero, therefore this expression dv by dr may be written as is equal to zero, and which implies dv is equal to zero. By taking integral on both the sides we can write v is equal to constant. इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर the value of the potential will exist and on the surface it must be constant. यानी value of the potential is constant throughout the volume of a conductor and has the same value on its surface. Thus the surface of the conductor is an equipotential surface. Surface of the conductor is an equipotential surface. Now the next point is electric field at the surface of the charged conductor is sigma upon epsilon naught n unit vector, जहाँ n unit vector एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंसिडर एन इरेगुलर शेप ऑफ द कंडक्टर। ये क्या चीज है? दिस इज सरफेस ऑफ कंडक्टर। इमेजिन a cylindrical Gaussian surface around it. The electric field is normal to the surface. We know this may be the area del S, and this dotted surface is a Gaussian surface. Now by the definition of electric flux, phi is equal to E del S, जहाँ पे del S सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बट Q is equal to sigma del S क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द एरिया। बाय द Gauss's theorem, electric flux over a closed surface is Q upon epsilon naught, but for a point charge, if the charge is distributed, then in place of Q we can write sigma del S, then expression will be sigma del x upon epsilon naught. What we have done, हमने दो काम किया। डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करा, और उसके बाद में हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पर इमेजिन कर गॉसिस लॉ से, गॉसिस थ्योरम से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया। नाउ वी कैन कंपेयर देम। आफ्टर कंपैरिजन ई डेल एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल एस एंड डेल एस कैंसिलिंग आउट, देन ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन वेक्टर फॉर्म E is a vector quantity sigma upon epsilon naught, and n unit vector will give the n unit vector will give the direction of the surface. Now the next topic is electrostatic shielding. This topic is again based on the
properties of the conductor, electrostatic property of the conductor, that electric field is zero in the cavity of the conductor or inside the conductor or in the interior of a conductor. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक द रीजन फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, चार्ज इज एग्जिस्टिंग ऑन द सरफेस बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड इट. तो इफ वी आर considering this reason, then this reason is having the property of electrostatic shielding because this reason is free from any external field. ये किस पर बेस्ड है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड है. अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि ड्यूरिंग द लाइटनिंग इट इज़ सेफेस्ट टू सिट इनसाइड अ कार रेदर देन नियर अ ट्री. यानी अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सडनली जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें वेरिएशंस आते हैं, लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो क्या सेफ है? कार के अंदर ही रुके रहना या शेल्टर लेना किसी ट्री के अंडर? तो इसमें साइंटिफिकली तरीके से बताया गया है कि कार के अंदर सेफ है. उसका रीज़न क्या है कि कार मेटेलिक बॉडी की बनी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करेगी. किससे? लाइटनिंग से. क्योंकि लाइटनिंग में क्या है? चार्ज है, और वो चार्ज जब कार के ऊपर गिरेगा तो क्या हो जाएगा? शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कार के अंदर का जो कैविटी रीजन है वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो. और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा का मतलब है जो पर्सन पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे हैं उन पर उस लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो सब सेफ रहेंगे.